Friends, hi. Nitin here. You must have heard about different definitions of success. But in this video, the definition of success that you're going to get is going to blow your mind. Now, in this video, I'll be sharing an excerpt from the interview I did with the chairman and managing director of Beat Light Group of Companies, Mr. Sandeep Soni. Now, he shared with me the exact definition of success, in which he has shared the meaning of each and every letter in this word success. Now go ahead and enjoy this video. I literally enjoyed it, and I'm sure this is going to add tremendous value to you. The meaning of success is going to be clear to you by the end of this video. Enjoy this now. मैं आपको बताना चाहूंगा कि what does it mean by success? Right. I'll take only 10 minutes. Sure. यदि आपने से समझ लिया, anybody else, not only me, anybody else, अगर वो इस बात को follow करता है, he'll got succeeded. Right. That's for sure. Right. I promise for the same. Please go ahead, sir. We are all waiting. You know the spelling of success? Yes. It's very simple. S U double C, that is E, and that Double is S. again S and S. Absolutely. So I would just like to abbreviate this abbreviated word. I would just like to explain meaning of each letter. Please do. The first S for success. This is the first S. It belongs to setting your goal, setting up your goal. You know, if you want to be successful, everyone else wants to be successful. But what does it mean by success? First, define your success. Like तुम्हारे लिए success कुछ और हो सकती है, मेरे लिए success कुछ और हो सकती है. मेरे लिए success हो सकता है कि figures, crores या thousands of crores, या मेरे लिए success हो सकता है happiness, या मेरे लिए success हो सकता है name, कि मैं nationally known हूँ, name and fame. मेरे लिए success हो सकती है smile on my face, smile on anybody else face. तो first define your success. Right. आप सक्सेस किसे मानते हैं? Right. आप 100 करोड़ को सक्सेसफुल मानते हैं, आप 1 करोड़ को सक्सेसफुल मानते हैं, आप 1000 करोड़ को सक्सेसफुल मानते हैं. एनीथिंग जो भी आप मानते हैं, फर्स्ट सेट योर गोल, फर्स्ट डिफाइन योर सक्सेस. पहले आप अपना टारगेट सेट कीजिए. जैसे मेरा टारगेट सेट है, मैंने आपको बताया आफ्टर 10 इयर्स में वहां मिलूंगा. दिस इज माय गोल. तो मैंने अपना माइंड सेट किया है, मैंने अपना गोल सेट किया है. तो दोस्तों को, मेरे दोस्तों को, व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आगे बढ़ने के पहले वेरी फर्स्ट यू डिसाइड योर गोल, यू सेट योर गोल. दिस इज फॉर फर्स्ट एस. अनटिल अनलेस आपके पास कोई गोल नहीं है, यू वोंट एबल टू अचीव इट. छोटा सा एग्जांपल देते हैं. नितिन, आप घूमने कई बार गए होंगे लाइफ में. जी. जब भी आप घूमने गए होंगे, कभी कभार ऐसा हुआ होगा यार मालूम नहीं कहाँ जाना, चलो घर से निकलते सोचेंगे कहीं तो पहुंचेंगे. जी. ऐसा सोच करके 100 में से कितने लोग वैष्णो देवी पहुंच गए? ऐसा सोच के कि चलो कहीं तो पहुंचना है. आई थिंक 100 में से एक या 1000 में से एक आदमी रैंडमली घर से निकला हो और वैष्णो देवी पहुंच गया हो. ऐसा रैंडमली हुआ होगा. करेक्ट. ऑन द अदर हैंड 100 लोग जो अपने घर से ये सोच के निकले हैं कि चलो वैष्णो देवी चलना है. 100 पीपल जो घर से निकल गए कि चलो वैष्णो देवी चलना है, उनमें से आई थिंक 95 या 97 लोग वैष्णो देवी पहुंच गए. 2 या 3 लोग होंगे जो सर्कमस्टेंसेस के चलते नहीं पहुंच पाए होंगे. जी. गेटिंग माय पॉइंट? एब्सोल्युटली. तो जो 100 लोग ये सोच के रवाना हुए थे कि वैष्णो देवी जाना है, मोस्ट प्रोबेबली वे पहुंच गए. और जो 100 लोग रैंडमली सोच के निकले थे कि कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, उनमें से कोई बिरला ही वैष्णो देवी पहुंचा. जी. Similarly, if you don't have your goal, believe me, my friend, you won't able to achieve it because you don't have your goal. And once you are having a goal, you are determined to goal. Believe me, you will be one who will achieve your goal. Fantastic. So the first step of success is set your goal. Right. Is that clear? Absolutely. Absolutely. I am making a note for myself too. Making a goal. You're welcome. Okay. Yeah, sure. It will work. So this is for S, setting up your goal. This is for first S, yeah. Okay. सक्सेस मिलेगी तभी जब आप उस सक्सेस को डिफाइन करेंगे. Okay. अगर आपने डिफाइन ही नहीं किया तो मिलेगा क्या? Is the second U, S then U. This is U for understanding the obstacles. Getting my point? Understanding the obstacles. आपने गोल सेट कर लिया. आप 1 करोड़ रुपए चाहते हैं पर एनम, यू वेलकम. आप 100 करोड़ रुपीस चाहते हैं पर एनम, यू आर वेलकम.
आप 1 लाख रुपीज चाहते हैं पर एनम, यू आर स्टिल वेलकम, व्हाटएवर। किसी के लिए 10,000 रुपीज पर एनम भी सक्सेस हो सकती है, करेक्ट ही इज ऑल्सो वेलकम। जी बट द सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द ऑब्स्टेकल्स। कोई भी जर्नी मेरे दोस्त, कोई भी जर्नी इतनी इजी नहीं होती, एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के पास, कुछ लोगों के पास स्टार्टअप फंड नहीं होता, कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जी तो जर्नी इज नॉट सो इजी। करेक्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी गोल आपने सेट किया है, जो भी गोल बनाया है, जो भी आपने प्लान बनाया है, उस प्लान के आपको ऑब्स्टेकल्स समझने पड़ेंगे। राइट आपने एक, मान लीजिए स्केच, एक प्लान बना लिया, स्केच आपने ड्रॉ कर लिया कि मुझे ये चाहिए, तो उस स्केच के आपको ऑब्स्टेकल्स समझने पड़ेंगे कि आपको जो भी प्रोजेक्ट प्लान है, आपकी जो भी थिंकिंग है, आपकी जो भी साइकोलॉजी है, उसके अंदर आपकी जर्नी में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। करेक्ट अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स, सेकंड Correct. पॉइंट। ओके, ओके आपको सारे ऑब्स्टेकल्स की स्टडी करनी होगी। ओके आप एक्स प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, या आपका प्रोजेक्ट प्लान है, आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद में आपको इतना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, तो आपको ऑब्स्टेकल्स जानने होंगे, आपको मार्केट स्टडी करनी होगी कि आपको मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस मिलेंगे, करेक्ट आपको क्या क्या कंपटीशन मिलेगा, Correct. कितनी मार्केट में अडोप्टेबिलिटी मिलेगी इसकी प्रोडक्ट Correct. की आपकी, करेक्ट क्या ये मार्केट में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। Correct. आपको इन सबकी स्टडी करनी होगी मेरे दोस्त। Correct. आपको अकेले को नहीं, आपको रोड पे निकलना होगा। आपके जो टारगेट ऑडियंस है, मान लीजिए आप पानी की बोतल बेचना चाहते हैं, तो पानी की बोतल कौन खरीदेगा, जो बस स्टैंड के ऊपर पसीने टपक रहे हैं वो खरीदेगा, तो वो आपका टारगेट ऑडियंस है। आपको उसके पास जाना होगा, आपको 100 या 1000 टारगेट ऑडियंस से आपके प्रोडक्ट के बारे में व्यू लेने होंगे, उनके इनपुट्स लेने होंगे। कुछ लोग आपको पता है कि ठंडा पानी मिल जाता तो मजा आ जाता, करेक्ट कुछ लोगों को आपको पता है कि पानी हल्का होता पीने में तो मजा आ जाता, Correct. कुछ लोग पता है कि लिटिल स्वीटनेस होती है उसके अंदर तो मजा आ जाता। करेक्ट आपको अपने टारगेट ऑडियंस के पास जाकर के, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप कुछ ऑनलाइन सेलिंग में जाना चाह रहे हैं, या आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो जो आपके टारगेट ऑडियंस है उनके पास जाकर के आपको उनका प्रपोजल बताना होगा, डेमो प्रपोजल बताना होगा, और उनके व्यूज लेने होंगे, क्योंकि वे लोग आपको ऑब्स्टेकल्स बताएंगे जिनके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। Fantastic. डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्यू? Absolutely, absolutely. What about C now? Yeah, the first C, this is for creating a positive mindset. This is very important, my dear friend. Creating a positive mindset of yourself. तुमने मुझे पूछा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? हर किसी ने मुझे डिनाई किया, कुछ दोस्तों ने मुझे सजेशंस में डिनाई किया, इन द सेंस पक्के दोस्त बन के बोला यार तू गलत कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे नीचा दिखाने के लिए बोला देखो क्या कर रहा है, रूल रहा है, ठीक है। कुछ लोग मेरे वेल विशर्स थे, उन्होंने पॉजिटिव वे में बोला, और जो मतलब जेलस करने वाले लोग थे उन्होंने नेगेटिव वे में बोला, बट एवरीबॉडी डिनाइड मी। यू नो अलीबाबा नाम जी। सुना होगा आपने, जी वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप है ये अलीबाबा। अलीबाबा के जो ओनर हैं आज की तारीख में, उन्होंने जब अलीबाबा शुरू की थी तो उनके सर्किल में उनके अलावा 12 फ्रेंड्स होते, तो उन्होंने टोटल 12 दोस्तों से और राय ली, बोले यार मैं ऐसा कुछ ई कॉमर्स शुरू करना चाहता हूँ। 12 के 12 फ्रेंड्स ने मना कर दिया, एवरीवन डिनाइड, सबने मना कर दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये चीज चल ही नहीं सकती, इस चीज की डिमांड ही नहीं है, ये थोड़ी ना चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। 13 फ्रेंड से राय ली, केवल एक फ्रेंड ने बोला हाँ यार चल सकता है, लेट्स गिव ए गुड ट्राई, लेट्स गिव ए गुड ट्राई ऑन इट। अगर ट्राई नहीं किया गया होता तो कभी साइकिल नहीं बनती। Correct. कौन बिलीव कर सकता है कि 2 पहियों पे कोई चल भी सकता है, 4 पहिए तो चाहिए। ट्राई नहीं किया गया होता तो साइकिल नहीं बनती, ट्राई नहीं किया गया होता तो बल्ब नहीं बनता, ट्राई नहीं किया गया होता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती, एरोप्लेन, मोबाइल एंड दिस स्काइप एंड व्हाटएवर, इंटरनेट कुछ भी नहीं बनता अगर ट्राई नहीं किया गया होता। फैंटास्टिक। यू मस्ट गिव ए गुड ट्राई। Fantastic. ट्राई आप कब कर पाओगे, जब आप खुद, यू योरसेल्फ, नोबडी एल्स नीडेड, नहीं चाहिए कोई भी और। पार्टनर को अगर मना करे तो नहीं चाहिए, घर वाले मना करें तो नहीं चाहिए, फ्रेंड्स मना करें तो नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट। क्रिएट ए पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ योरसेल्फ। आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कीजिए मेरे दोस्त। फैंटास्टिक।
Fantastic. अकेले ही निकलेंगे, अकेले ही चलेंगे, कारवा तो जुड़ता जाएगा, कोई खास Fantastic. बात नहीं है। Fantastic. पिक्चर तो बदलती जाएगी, कोई खास बात नहीं है। और एंड के अंदर रिजल्ट तो कुछ और ही आएंगे, कोई खास बात नहीं। बट फर्स्ट क्रिएट योर ओन पॉजिटिव माइंडसेट। आप खुद Absolutely. को उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्लान के लिए, आपके उस गोल के लिए आपको खुद का पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। आपको खुद को उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आपको खुद को डेट बिलीव होना चाहिए कि यस आई विल बी एबल टू डू इट। ये थर्ड सी है, तो आप एक गुड स्टार्ट कर पाएंगे। दिस इज द स्टार्ट ओनली। इट डजंट मीन कि आपने पॉजिटिव माइंडसेट बनाया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कैसे होंगे वो आगे बताऊंगा। Correct. Can I ask a question here? Can I ask a question here? प्लीज प्लीज। ये आपके आपके इर्द गिर्द सभी लोग अगर आपके किसी आइडिया को नकार रहे हैं, एग्रीड एग्रीड। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से लाएं कि मेरा आइडिया, इस आइडिया में दम है और आई डोंट केयर कि कोई क्या कहता या क्या नहीं कहता, आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। ये कॉन्फिडेंस कहां से लाएं? ये व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू टू बी एबल टू इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स रियली वेरी सिंपल। मैंने ये नहीं कहा कि यू मेक इट सक्सेसफुल, मैंने ये नहीं कहा यू मेक इट प्रॉफिटेबल, मैंने ये नहीं कहा कि यू वॉन्ट बी एबल टू गिव ए रिवलेशन। मैंने ये कहा ट्राई करो यार, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, ट्राई कर लो ना। मैंने कहा ट्राई इट। What you are saying is at least don't drop the idea. डेफिनेटली यार, यू Just शुड ट्राई। you give आपको it खुद a पे try. बिलीव है, आपका खुद का पॉजिटिव माइंडसेट है। मैंने नहीं कहा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। Correct. मैं भी बहुत बार फेल हुआ। Correct. यू वोंट बिलीव, आई ट्राइड अराउंड 10 बिजनेस आइडियाज और मैं 9 में फेल हुआ। डेफिनेटली मैं फेल हुआ मेरे दोस्त। लेकिन आपने कई जगह पढ़ा होगा कि फेलियर दो ही चीजें देता है, या तो सक्सेस या एक्सपीरियंस। Absolutely. फेलियर हमेशा दो ही चीजें देता है। Absolutely. एट द एंड या तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो। Right. कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आपके पास एक और एक्सपीरियंस आ गया, आप अगला आइडिया सोचेंगे तो पुराने फेलियर्स को ध्यान में रख के सोचेंगे। Fantastic. Fantastic. मैं अपने करियर के इनिशियल में 2 साल तक, इनिशियल 2 साल तक मैंने 1000 रुपए, 1000 रुपीज मंथली नहीं कमाया मैंने 2 साल तक। मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में था और दिल्ली में ऐसी पोजीशन थी मेरी कि वहां पर खाने के लिए एक रेडी लगती थी। रेडी मतलब ठेला, दैट इज नॉट स्ट्रीट साइड फूड। और वहां पर 10 रुपए में 2 डालडा घी के पराठे मिलते थे, जिनसे कि पेट भर जाता था। वो मैं दोनों टाइम नहीं खा पाता था। और मैं जब 4 दिन खाता था तो उधार करता था मैं, यार कल देंगे, यार कल देंगे। 4 दिन मतलब 4 नाइट में खाता था। 10-10 रुपए में 40 रुपए में हो जाते थे। 5वें दिन मुझे पक्का पता होता था कि आज 50 हो जाएंगे, 50 राउंड फिगर होती है, पैसे मांग लेगा। 5वें दिन मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे। मैं 5वें दिन खाना नहीं खाता था, 6ठे दिन खाना नहीं खाता था अगर पैसे नहीं होते। 7वें दिन मार्केट में जाता, वेबसाइट डिजाइनिंग करता था मैं उस समय लोगों की। वेबसाइट बनवा लो, वेबसाइट बनवा लो। कोई मुझे 2000 की वेबसाइट डिजाइनिंग का ऑर्डर दे देता तो मुझे 500 रुपए एडवांस मिलते, तो मैं 7वें दिन डिनर कर पाता था। ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ऐसा मैंने मेरी लाइफ में 6 महीने 7 महीने किया है। पूरे दिन में केवल 10 रुपए में 2 डालडा घी के पराठे खा के मैं जिंदा रहता था, और वो भी कभी मिलते थे और कभी नहीं मिलते। ऐसा मैंने शुरू किया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पहला आइडिया सक्सेसफुल हो जाएगा, हु टोल्ड यू, मैंने तो नहीं कहा। बट यू मस्ट गिव इट ए ट्राई, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप इनोवेशन नहीं करोगे, जब तक आप रिवोल्यूशन नहीं करोगे तब तक आप कुछ मल्टी मिलियन इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। फिर तो जॉब करो। You know, entrepreneurship, doing business is not a cup of tea for everyone. If you don't have belief in yourself, if you cannot create your positive mindset, then please stop watching this interview and immediately go for a good job, my dear friend. I completely agree with you. I think I completely agree with you. I think entrepreneurship is one of the toughest things to do in the world. Yeah, It's one of the toughest. No doubt about it. No doubt about it. I would love to move ahead to the next C now. Yeah, this is the next C. Have you understood every C? Yes. Creating a positive mindset. Correct. Now, the next C means clear the doubts. Right. Clear the doubts of yourself. Clear the doubts of your target audience. Clear the doubts of your family. Clear the doubts of your colleagues. Clear the doubts of your partners. Clear the doubts of your employees. Right. And clear the doubts of everyone. Like आपने प्रोडक्ट बना लिया, पॉजिटिव माइंडसेट आपने लिया, Right.
ऑब्स्टेकल्स आए मार्केट में, आप गए, व्यूअर के पास गए, आपके टारगेट ऑडियंस के पास गए, आपने सुना, समझा। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस इनपुट लो, आप अडामेंट मत बनो, गेट रेडी टू चेंज। जो भी आपने एक प्रोजेक्ट प्लान लिखा है, यू नो, ऑलवेज गेट रेडी टू चेंज इट, ऑलवेज। आज नहीं, इवन आफ्टर 10 years में, आज भी, इवन टुडे इटसेल्फ, मुझे मार्केट, मेरे क्लाइंट्स कुछ इनपुट्स देते हैं, आई एम रेडी टू चेंज इट। आई एम स्टिल हैविंग डाउट्स, पॉजिटिव माइंडसेट है, इन डाउट्स हैं, मुझे रखना ही चाहिए, उन डाउट्स के जवाब ढूंढने ही चाहिए, आपको खुद को ढूंढने चाहिए, आपके क्लाइंट्स बताएंगे, आपकी फैमिली ने ऑब्स्टेकल उठाए, आप उनको डाउट्स को एक्सेप्ट करो, उन डाउट्स को आप कैलकुलेट करो। गेटिंग माय पॉइंट? कैलकुलेट करने के बाद क्लियर करो, नहीं यार ये मैं कर दूंगा, और उसके बाद अपनी फैमिली के डाउट्स क्लियर करो कि नहीं पापा मुझे 1 साल दो, नहीं मुझे 2 साल दो, बिलीव ऑन मी। अपने स्पाउस के डाउट्स क्लियर करो, राइट आप अपने पार्टनर के डाउट्स क्लियर करो, यार देखते यार कोई बात नहीं, क्या होगा, 6 महीने ट्राई कर लेंगे, कुछ भी सामने नहीं आएगा, कुछ और करेंगे, लेकिन ट्राई तो करें। आप डाउट्स क्लियर करो। गेटिंग माय पॉइंट? आपका अगर मान लीजिए एंड कस्टमर बोलता है यार पानी ठंडा होना चाहिए था, आप उनके डाउट्स क्लियर करो, बोले तो ऑलरेडी ठंडा है। राइट वो बोलेगा हल्का होना चाहिए पीने में, बोलना यार डेफिनेटली हल्का है, हम हिमालय की वादियों का पानी है, डेफिनेटली बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्का महसूस होगा पीने में। तो आप लिस्ट बनाओ डाउट्स की, उसके डाउट्स क्लियर करो, टारगेट ऑडियंस के डाउट्स क्लियर करो, फैमिली के डाउट्स क्लियर करो, आप फ्रेंड्स के डाउट्स क्लियर करो, हो सकता है 6 months लग जाए, हो सकता है 1 year लग जाए, आप उनके डाउट्स क्लियर करो। यार मेरे दोस्त नितिन, तूने मुझे राय दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तू मेरा अच्छा दोस्त है, तूने बोला यार ये सब मत कर, बकवास है, लेकिन मैं तेरे को बताना चाहता हूँ यार ये बकवास नहीं है, तो अभी नहीं सुन पा रहा, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद में आना, तुझे थोड़ा करके दिखाऊंगा, 4 महीने बाद में आना, थोड़ा और करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि नितिन बाढ़ पे जाए, नेवर, बाढ़ पे नहीं जाए, क्योंकि अकेला आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। You always need a team. You always need well wishers. You always need a good circle. You always need a positive circle. तो आपको बाहर में नहीं जाने देना है, आपको उन्हें साथ लेके चलना है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, ताकि उनकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाए, उनकी तरफ से वेल विशिंग आनी शुरू हो जाए, और उनकी तरफ से अच्छी राय आनी शुरू हो जाए, जिन्हें आप इनपुट में ले सको और आप अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर सको। Fantastic, fantastic. I'm with you on SUCC. I'm eagerly waiting for the meaning for E. E. इतना समझ लिया आपने अभी तक? आपको लगता है कि आपको हलवा मिल गया रेडीमेड, खा लो? सक्सेस इज नॉट इजी माय डियर फ्रेंड। नाउ इतना करने के बाद पॉजिटिव माइंडसेट, आपने सेट योर गोल, अंडरस्टैंडिंग द ऑब्स्टेकल्स, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट, क्लियर योर डाउट्स, इसके बाद में आपकी जर्नी शुरू होगी। अभी तक आपकी जर्नी शुरू नहीं हुई है, अभी आपने चलना शुरू नहीं किया है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको वैष्णो देवी जाना है, या आपको एटलस जाना है, सॉरी आपको माउंट एवरेस्ट जाना है, अगर तो अभी आपने जर्नी शुरू की है। जर्नी बिगिंस हियर। ई मींस एम्ब्रेस द चैलेंजेस। ऐसा नहीं चैलेंजेस नहीं आएंगे लाइफ में, देयर इज नथिंग इजी, रेडीमेड हलवा नहीं खा लो, देयर इज नथिंग इजी मेरे दोस्त। चैलेंजेस आना शुरू होंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। आपने जो प्रोजेक्ट प्लान की, कैसे चैलेंजेस आएंगे? कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, कभी क्राइसिस आएगा, कभी पैसे नहीं होंगे। आपने इनिशियली सोचा था यार 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे और हम इतना कर देंगे, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट होने के बाद आपको पता चलेगा आप उसके आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। आपने माइलस्टोन्स बनाए लाइफ, राइट। आपने सोचा कि इतना पैसा खत्म हो जाएगा, पता चलेगा प्रोग्राम्स मेरे से, राइट, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। राइट, मालूम चलेगा पैसा खत्म हो गया, आपका प्रोडक्ट रेडी ही नहीं है। राइट, मालूम चलेगा प्रोडक्ट रेडी हो गया, पैसा खत्म हो गया। Right. इट्स नॉट ओनली मनी। मालूम चलेगा कि जो स्टाफ आपने जोड़े थे Right. वो लालच में कहीं और चले गए। राइट, मालूम चलेगा पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट हो गए। राइट, मालूम चलेगा बीमार हो गए, आपको टाइफाइड हो गया, आपको पीलिया हो गया। राइट, भगवान ने करे मालूम चलेगा कि बिलव्ड वन की डेथ हो गई। राइट। चैलेंजेस आने बाकी है मेरे दोस्त, जर्नी अभी शुरू हुई है। आप उन चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो, आप उनको देखो, आप उनको रीड करो, उन चैलेंजेस को आप समझो और टेकन एज ग्रांटेड, उनका वेलकम करो। इफ देयर इज नो चैलेंज मींस देयर इज नो लाइफ। एक डेड बॉडी के पास कोई चैलेंज नहीं, आराम से शांति से कोई चैलेंज, राइट, न उसको सर्दी लगती है, न उसको ये टेंशन है कि कोई जला देगा, राइट, राइट,
ना उसको ये टेंशन है कोई जला देगा, ना उसको आग से कोई तकलीफ होती है, ना उसको कंधे में किसी ने उठाया, इधर झुका दिया उधर झुका दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसको। राइट दिक्कत किसको नहीं होती है? डेड बॉडी को। राइट अब जिंदा है, दिक्कत होगी मेरे Right. दोस्त, तुम दिक्कत का वेलकम करो। Right. दिक्कत तो आनी चाहिए, इट्स लाइफ बेसिकली। fantastic Get fantastic ready for the challenges. so Embrace the challenges. one should always be ready to embrace challenges that comes his way. I completely agree with you. What is your meaning for S? नेक्स्ट एस, चैलेंजेस आ गए, मी माई सेल्फ और मेरे कई कलीग्स और इवन बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्टेड देयर जर्नी। अगर 1000 लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो 10 सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 990 पीपल सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? बिकॉज दे डोंट स्टे, दे क्विट। तो नेक्स्ट एस मींस स्टे 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 मेरे दोस्त, स्टे stay on your journey, stay on your plan, stay on your beliefs, stay, you must be stayed there. आपने चलना शुरू कर दिया, आप जाना चाहते हैं वैष्णो देवी, चैलेंजेस आए, बीच में छाले पड़ गए, आपके पाँव में पत्थर आ गए, कांटे चुभ गए, there are two options, either to get back or to stay on your plan, to stay on your move, to stay on your journey. So S means stay on your plan, stay on your beliefs, stay on your journey, don't quit, get continued. चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुको मत मेरे दोस्त। रुकोगे तो 990 में शुमार होगे, नहीं रुकोगे तो 10 लोगों में शुमार होगे। तो सेकंड लास्ट एस मींस स्टे ऑन योर प्लान, स्टे ऑन योर बिलीव। चैलेंजेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करते चलो। लॉस हो गया, आपने कैलकुलेट किया था 1 लाख रुपीज लगाऊंगा 2 लाख रुपीज कमा लूंगा, एट द एंड मालूम चला यार 1 लाख रुपीज लगाए साला 50,000 ही कमाए, 50,000 का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, आप इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू करो, दोबारा से आप ना स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड करो, आपके ऑब्स्टेकल्स को फिर से अंडरस्टैंड करो, फिर आप स्टडी करो, फिर आप डाउट्स क्लियर करो, खुद के भी लोगों के भी। उसके बाद में ये आप पूरा प्रोसेस रिपीट करो मेरे दोस्त, फिर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, प्रोजेक्ट प्लान में चेंज करो, गेट रेडी फॉर चेंज। आपको मालूम होगा नोकिया आया था मोबाइल, आज के 10 साल पहले केवल नोकिया था मार्केट में, कोई मोबाइल ही नहीं था, ओनली नोकिया, इफ यू रिमेंबर। आई रिमेंबर। मार्केट से गायब हो गया नोकिया। क्यों गायब हो गया मालूम है? क्योंकि जब नोकिया था बहुत अच्छा चल रहा था, उसके पास सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, फिर एंड्रॉइड आया, गूगल लेके आया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड को इमीडिएटली अडॉप्ट किया सैमसंग ने, इमीडिएटली अडॉप्ट किया एलजी ने, इमीडिएटली अडॉप्ट किया सोनी ने। ये मार्केट के आज बिगेस्ट प्लेयर्स है। किसने अडॉप्ट नहीं किया? नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया। मैं किसी का ओएस क्यों अडॉप्ट करूं? मेरे पास तो मेरा ओएस है, मेरे पास तो सिम्बियन है। व्हाई वुड आई गो फॉर एंड्रॉइड? मार्केट में सब यूजर्स का फ्लो होता गया एंड्रॉइड की तरफ, एवरीवन बिगिन टू लाइक एंड्रॉइड। उसे मालूम चला एंड्रॉइड को बहुत पसंद किया जा रहा है, एंड्रॉइड का ग्राफ क्यों बढ़ा? उस ग्राफ के बढ़ने के बाद भी उसने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। और जब उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, वो मार्केट से गायब हो गया। एट द एंड नोकिया को बिकना पड़ा, माइक्रोसॉफ्ट ने उसे खरीदा। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या कहा, मेरे पास विंडोज है, व्हाई डू आई गो फॉर एंड्रॉइड? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे स्टक रहा, उसने चेंज नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट बर्बाद होने लगा। अब एट द एंड नोकिया में एंड्रॉइड आ गया। भाई पहले आ जाता, सही बात, बर्बाद नहीं होता। सही बात, आई एग्री। जेरोक्स हम जानते हैं, फोटोकॉपियर मशीन है जेरोक्स। पहले के जमाने में 10 साल पहले लोग ये नहीं कहते थे जब फोटोस्टेट करवा ला, लोग ये कहते थे जेरोक्स करवा ला। यू नो जेरोक्स कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं जेरोक्स, लोग कहते थे इसके जेरोक्स करवा ला। जेरोक्स बेसिकली कंपनी का नेम है। जेरोक्स एक कंपनी है जो फोटोकॉपी मशीन बनाती थी। उसने क्या किया, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कंप्यूटर्स आए, प्रिंटर्स आए, ठीक है ना, डिजिटल फोटोकॉपियर्स आए जो आज हमारे कंप्यूटर में लग जाते हैं। जेरोक्स ने अपने आप को चेंज नहीं किया, उसने मोमेंट नहीं लिया। गेटिंग माय पॉइंट? और मोमेंट नहीं लेने से क्या हुआ, जेरोक्स मार्केट से खत्म होने के, बर्बाद होने की कगार पे आ गया। फाइनली उसने चेंज किया तो वो मार्केट में वापस आया। So basically what you're trying to say is don't quit, but be willing to adapt, be willing to accept changes, but don't quit. Accept the changes, don't quit. I am with you till the last S, as you said, stay there, don't quit. Don't quit. Don't quit. You may want to change your plan, you may want to adapt to changes, and that you should always be willing to, but there is no way that you want to quit. No way to quit. Because as they say, winners never quit and quitters never win. I agree with you. The last S, the final S, show to the world
that yes, you have done it, you can do it. Show to the world that you can do it. The last S simply means Wow. success itself. I think Sandeep, beautiful. I think this was one of the most insightful definition that I've heard, that I've understood about success. I've made my notes. I'm sure the people watching this video are going to be they'll be excited about the definition. आपने सक्सेस की डेफिनेशन सुन ली. मेरे हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन में एक एस और होना चाहिए था लास्ट में. जी. SUCCESS ये स्पेलिंग है. इट मस्ट बी SUCCESS. Right. ये स्पेलिंग होनी चाहिए थी. तो लास्ट एस का मीनिंग होता स्माइल. Right. एट द एंड ऑफ द जर्नी अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो सब बकवास है. चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी हो जाए, एट द एंड सक्सेस के बाद आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए. आप लोगों का मर्डर कर करके सक्सेसफुल मत बनिए प्लीज मेरे दोस्तों. आप कुछ भी ऐसा काम करके सक्सेसफुल मत बनिए कि एट द एंड आपका दिल आपको कोस रहा हो. आपने वैल्यूज पे रहिए और अपने एटलीस्ट एट द एंड आपको और आपके पूरे सर्किल को सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए. आपको जो भी आइडियाज, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, इट मस्ट नॉट ओनली बी द मनी बट इट मस्ट बी ए स्माइल ऑन द फेस ऑफ एवरीवन. आपके फ्रेंड्स के, आपके फैमिली के, आपके दोस्तों के, आपके कस्टमर्स के, एवरीवन एल्स मस्ट शुड हैव ए स्माइल ऑन द फेस. तो सक्सेस के एंड में अगर स्माइल मिसिंग है, यदि आप पहुंच गए कहाँ जहां आपको जाना था, एवरेस्ट पे आप पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए आप, और आपके सारे दोस्त बीच में करते गए, आप दोस्तों को गालियां निकालते रहे, किसी के डाउट्स क्लियर नहीं किए, किसी को साथ नहीं लिया, एट द एंड में जाकर के आप वहां पर अकेले अगर पहुंच गए, तो बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, you won't be able to get a joy to enjoy your success. You won't be able. आपके साथ आपके दोस्त हमेशा. Fantastic.